वेलकम टू कॉमर्स मंच क्लास 11th अकाउंटेंसी। हम लोग लास्ट एपिसोड में जर्नल स्टार्ट किए थे और जर्नल में व्हाट इज जर्नल एंड हाउ द एंट्रीज आर recorded, how the transactions are recorded in the books of accounts. We have taken 4 examples. Now we are going to start with the journal entries, that is common journal entries in a business. Okay, so we are starting with the journal, and the journal entries have been divided into two parts, that is one without GST and another is with GST. So we are not concerned with the GST now, we are dealing with without GST first. Okay, so some common, that is journal entries we are taking. First, suppose starting of a business, that means introduction of the capital. First journal, we are not drawing the format, that means how the journal entries are taking place. One side we are writing the journal and another side we are analyzing. That means introduction of capital, you see how it is affected. That is, you can take for example, that is first Ramesh started business with rupees 1 lakh. This is what, and when business is started, it is the capital which is capital is brought by the owner by cash or with some other assets also they can start the business. So you can see that first entry will be, that is how it is affected. What is coming to the business? Cash is coming. So cash is coming means cash is real account, and debit what comes in and credit what goes out. That means debit what comes in, then the cash is debited. Here cash account is debited to, that is what will be created. You can see, that is who has given the money. The proprietor has given the money, that is capital. Proprietor's account is personal account and it is debit the receiver, credit the giver. That means ये giver हो गया, you can say ये हो गया debit. Okay, now you can write here the capital account, that is 1 lakh, and here also it is 1 lakh. When a person is, that is bringing any other asset, suppose the person is bringing a building, his own building is used in the business from the beginning. So you can take for example, that is in that case what will happen, that is started business with cash rupees 1 lakh and building, suppose building is there 2 lakhs. So what will happen here, again another, that is item will be taken here, that is you can say here you will take, that is building. Okay, so building debit, another debit is there, 2 debits, and here it will be capital. Total capital will increase, that is debit what comes in, because building is also real account, because it is fixed assets. Okay, so capital account, that is here it will be 3 lakhs. Okay, then so you can say that debit credit, यहाँ पर डेबिट 2 हो गया और क्रेडिट 1 हुआ, लेकिन डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू द क्रेडिट्स. यू कैन सी दैट कैश और बिल्डिंग मिल करके 3 lakhs हुआ और कैपिटल इज ऑल्सो 3 lakhs. ओके, सो डुअल एस्पेक्ट इज देयर. नंबर 2, यू कैन टेक द कॉमन. ये बिजनेस शुरू कर दिए, बिजनेस शुरू करने के बाद फिर क्या कर सकते हैं, दे कैन स्टार्ट ओपन ए बैंक अकाउंट. Okay, with rupees, suppose rupees 50
10,000। एक अकाउंट उन्होंने नया खोला और ये नया अकाउंट के लिए वो लोग क्या किए, तो क्या क्या इन्वॉल्व हुआ यहाँ पर, दो एस्पेक्ट आप देख लीजिए। दैट इज नंबर 2, दो एस्पेक्ट ये हो गया कि आपका बैंक अकाउंट एक नया खुलेगा। दैट मीन्स बैंक इज व्हाट, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, दैट मीन्स यू आर डिपॉजिटिंग मनी टू द बैंक, और यू कैन से बैंक इज एसेट्स। सो यहाँ पर एसेट इंक्रीज हो रहा है, सो इट विल बी डेबिटेड, और यू कैन से बैंक is a personal account and it is debit the receiver and credit what goes out, that is what goes out, that is रियल अकाउंट्स हो सकता है। और अगर हम रियल की बात करेंगे तो रियल अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट हो गया। ओके, सो यू कैन से दैट ओपन ए बैंक अकाउंट में बैंक, आपके पास पैसा ऑलरेडी डेबिट में है, बैंक अकाउंट डेबिटेड हो गया, ठीक है, और टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। ओके, कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया ये। देन नंबर 3 और एक कॉमन, क्या उसके बाद क्या कर सकते हैं ये लोग, कोई एसेट खरीद सकते हैं, कोई गुड्स भी खरीद सकते हैं। तो बिजनेस शुरू हो रहा है तो हम एक एसेट का एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज एसेट परचेज, और यू कैन से हियर कोई भी एसेट, फिक्स्ड एसेट, हम फर्नीचर परचेज्ड। अब ये फर्नीचर जब परचेज होता है, ओके, हम एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं, फर्नीचर जब परचेज होता है ये हो जाएगा कैश में परचेज हो सकता है या तो क्रेडिट में हो सकता है। अब हम लोग यहाँ पर दैट इज अलग अलग ट्रांजेक्शन हम ले सकते हैं। दैट इज अगर कैश में परचेज करता है तो सपोज कैश में परचेज किया इसने, दैट मीन्स नंबर 3 में सपोज कैश में परचेज किया तो क्या हो जाएगा, फर्नीचर डेबिट व्हाट कम्स इन, बिकॉज इट इज फर्नीचर, क्रेडिट में परचेज करे चाहे कैश में परचेज करे, फर्नीचर यहाँ पर आ रहा है ना, तो फर्नीचर आ रहा तो फर्नीचर डेबिटेड हो गया, दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर यहाँ पर आपने डेबिट कर दिया, फर्नीचर डेबिटेड। सपोज फर्नीचर हमने 10,000 का खरीदा है, ओके, जिसमें से हमने कैश में 10,000 का खरीदा, अगर क्रेडिट में खरीदते तो क्या होता, अगर हम क्रेडिट में खरीदते तो जो जहाँ से हम खरीदते उसी का नाम आ जाता। सपोज हमने क्रेडिट पे बिल कोई फर्नीचर हमने 5,000 पे खरीदा, सपोज एक्स से हमने खरीदा, एक्स एक पर्सन है तो क्रेडिट में खरीदे तो क्या हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 5,000 टू एक्स अकाउंट 5,000 हो जाएगा। ओके, तो इन दिस वे यू कैन से दैट यहाँ अगर क्रेडिट में परचेज करते हैं तो उस आदमी का नाम पर्सनल अकाउंट हो जाएगा वो, और वो यहाँ पर क्रेडिट में आ जाएगा, दैट मीन्स डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर हो जाएगा। ओके, ये हो गया आपका एसेट। उसके बाद हम एक्चुअल में आते हैं, दैट इज गुड्स में आते हैं। ओके, तो गुड्स में जब हम आएंगे, हम अब हमको क्या करना है, अलग अलग दैट इज ये में डील करना है। यू कैन सी दैट हाउ इट इज, हाउ गुड्स आर that is purchased and sold. When you can say that is the fourth one, that is अगर हम परचेज ऑफ गुड्स की बात करें, परचेज ऑफ गुड्स means the commodities or the things in which the business deals in. Okay, तो परचेज ऑफ गुड्स है, परचेज ऑफ गुड्स कैश हो सकता है या तो क्रेडिट हो सकता है, ये ध्यान देना है आपको। अगर कैश होता है, सपोज कैश में हमने खरीदा है 20,000 और क्रेडिट में किसी से हमने खरीदा है, रवि से हमने खरीदा दैट इज 15,000 का, तो कुल मिला के कितना खरीदा हमने। तो यहाँ पर आप देखिए दो अकाउंट जो इन्वॉल्व हो रहा है, एक तो कैश इन्वॉल्व हो रहा है, कैश हमारे हाथ से जा रहा है 20,000, और हमने रवि से दैट इज रवि से हमने 15,000 का खरीदा, तो ये एक तरफ हो गया।
दूसरे तरफ हो गया परचेज, तो हमारा परचेज जो है, परचेज इज इन्वॉल्विंग गुड्स दैट इज 35,000। तो ये हो गया आपका परचेज जो है, इट इन्वॉल्व्स गुड्स एंड इट इज रियल, और यू कैन से ये आपका परचेज अकाउंट डेबिटेड हो जाएगा। ओके, तो परचेज अकाउंट आपका डेबिट हो गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, और इंक्रीज इन एसेट्स, फ्लोटिंग एसेट्स, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड हो गया। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, टू पैसा जो गया दैट इज क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रियल है ना, और ये रवि पर्सनल है, दैट इज क्रेडिट द गिवर। सो हियर क्रेडिट द गिवर, तो परचेज में हम एक साथ हम ले जाएंगे 35,000, ये 20,000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका दैट इज रवीज अकाउंट आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया 15,000। इन दिस वे कैश और क्रेडिट हो जाएगा। ओके, नाउ फिफ्थ वन इज सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स, ओके, जब गुड्स सेल किया जाएगा तो क्या होगा, तो ये परचेज हुआ तो डेबिट हुआ, सेल होगा तो डेफिनेटली क्रेडिट होगा, बट हाउ इट इज क्रेडिट। तो सेल ऑफ गुड्स जब होता है, तो सेल ऑफ गुड्स के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो सेल में गुड्स चला जा रहा है, तो गुड्स क्या हो, सेल्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ओके, एंड सेल ऑफ गुड्स भी ऐसे आपका कैश में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है। यू कैन सी कैश में सपोज हमने सेल किया है सपोज 20,000 का, और क्रेडिट में सेल किया है 10,000 का। अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट में सपोज किसको हमने क्रेडिट पे सेल किया, सपोज हमने सेल किया दैट इज डेबिट को हमने सेल किया, ये क्रेडिट पे होने से उसका नाम जरूर रहेगा यहाँ पर, द पार्टीज नेम, देन यू विल राइट दैट कि हम सेल करने से हमारे पास पैसा आएगा। फर्स्ट केस में व्हेन वी टॉक अबाउट द सेल, दैट इज सेल्स यहाँ पर क्रेडिटेड हो गया, तो कैश और क्या है, और यहाँ पर तीसरा दैट इज डेबिट यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है। तो क्रेडिट द गिवर, ये आपका एसेट हो जाएगा, इंक्रीज इन एसेट, ये क्रेडिट द इंक्रीज इन एसेट दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आपके हाथ में आ गया। डेबिट द रिसीवर, सॉरी डेबिट द रिसीवर यहाँ पर आ जाएगा और डेबिट हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर, तो डेबिट इज द रिसीवर, तो डेबिट डेबिटेड टू दैट इज सेल्स अकाउंट। ओके, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, और कैश यहाँ पर आ गया 20,000 और यहाँ पर 10,000 हो गया डेबिट, और टोटल हो गया 30,000। ओके, ये आपका 5 नंबर दैट इज सेल ऑफ गुड्स हो गया। अब इसमें दो चीज़ें और हमको देखना है, उसके बाद इसको कंक्लूड करना है, और उसके बाद फिर नया चालू करेंगे। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल्स ले के कर रहे हैं, लेकिन आपको खाली जर्नल एंट्रीज को समझना है, द कॉमन जर्नल एंट्रीज फॉर ए बिजनेस। यू सी रिटर्न ऑफ गुड्स, रिटर्न यहाँ पर क्या हो सकता है, रिटर्न ऑफ गुड्स, तो रिटर्न ऑफ गुड्स बाय दैट इज बाय योर कस्टमर, किसी कस्टमर ने आपको रिटर्न कर दिया, कोई कारण है कि उसमें डिफेक्टिव गुड्स हो गया, या तो सैंपल जो उन्होंने भेजा था उस हिसाब से आपने गुड्स नहीं भेजा है, इसीलिए उसने, या डैमेज्ड हो गया है, आपका टर्म्स एंड कंडीशंस के अंडर में आ रहा है, तो आप उस रिटर्न गुड्स को रखेंगे। आप रिटर्न गुड्स को जब रखेंगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन होगी, तो वो जो गुड्स आप रखेंगे वो सेल्स को आप उसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, आप सेल किए थे, अब आपके पास आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ पर गुड्स नहीं लिख सकते, रिटर्न इनवर्ड दैट इज हमारे पास आ रहा है। ओके, ये भी इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स गुड्स टू, किसने दिया, जिसने भी दिया, मान लीजिए किसी जो पार्टीज ने, मान लीजिए आपने जो सेल किया था डेबिट ने दे दिया, ठीक है, तो डेबिट से अकाउंट हो जाएगा। ओके, तो डेबिट ने मतलब सपोज 2,000 का गुड्स है जो कि सैंपल के हिसाब से नहीं हुआ, उसने रिटर्न कर दिया, ये हो सकता है। और यहाँ पर और एक है सपोज 7 दैट इज रिटर्न बाय यू,
रिटर्न ऑफ गुड्स टू सप्लायर्स। हमारे सप्लायर को हम भेज रहे हैं गुड्स। सपोज हमने अपना गुड्स, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है ना, तो हम क्या करेंगे, अब हम भेजेंगे तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, दैट मीन्स क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसको कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड हो गया, क्रेडिट हो गया क्योंकि ये डेबिट है। तो जिसको आप रिटर्न, डेबिट द रिसीवर, जिसको आप रिटर्न करेंगे, दैट इज सपोज मान लीजिए यहाँ पर किसी का नाम लिख दीजिए, सपोज वाइज अकाउंट। कोई भी कस्टम यहाँ पर सप्लायर्स हो सकता है, सप्लायर जनरली कोई भी सप्लायर, कैश वाले सप्लायर भी हो सकते हैं। तो वाइज अकाउंट मान लीजिए वाइज को आपने भेजा, तो ये हो गया डेबिट द रिसीवर। सपोज आपने 5000 का गुड्स उनके भेज दिए। और ये ध्यान रहे कि रिटर्न इनवर्ड